Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi, your subject Principles of Management in your semester 1 in your first year BBA. We have started with our unit number 2, that is planning and decision making. In that you are going to learn about the concept of planning and its definition, which are already being explained in your previous video. Then you will learn the process of planning, the features of planning which are going to be explained in your, which has already been explained in your previous video, types and premises, and today we are going to cover the significance and the limitation of planning. And then we will move towards the topic that is decision making, the process and definition, and then we will understand the basic difference between an individual versus a group decision making. Now let us today understand what are the importance of planning. Now, very few people will dispute the fact that planning is important for all the business unit. Planning is now become more essential in all the business field. It is necessary almost in every work of life. The main benefit of planning are going to be explained in today's section. So let us see each benefit of planning. The first benefit, that is all activity become a purposeful and orderly. Whenever you are having a defined and clear goal is being clear to you, then all efforts are pointed towards your desired result. All activities of the unit are so coordinated that the goal can be realized with the least cost and within a shortest possible time. जब आपको क्लियर है आपके कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है, व्हेन यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या अचीव करना है, तो जितने भी एफर्ट्स आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वो टुवर्ड्स योर डिजायर रिजल्ट होगा. सारी यूनिट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करोगे, सारे गोल्स को आप अचीव करोगे एट द मिनिमम कॉस्ट एंड विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. Second important is that it help in economizing by reducing waste. जब आप प्लान करोगे तो you will try to reduce the wastage, you will try to have wastage less, ठीक है, because planning will help us to avoid the unproductive activity. ठीक है, प्लानिंग करोगे तो unnecessary जो एक्टिविटी हम करेंगे वो आपका यहाँ पे अवॉइड होगा. हर एक एक्टिविटी को आप एग्जामाइन करोगे जब आप स्टार्ट करने वाले हो, तो हर एक एक्टिविटी विल बी एग्जामाइन. each and every activity are already being examined before it has been started. मैक्सिमम आप ये ध्यान रखोगे कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड. तो प्लानिंग कैन सेव द टाइम ऑल्सो एंड प्लानिंग कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो. प्लानिंग विल लीड to you a economic use of resources in another way. So planning say you can have a maximum utilization of your capacity. Through planning you can achieve your production capacity at a maximum level with a minimum resources. You will beneficial not only to your concerned unit but you will benefit towards the society also, because you will supply the larger goods at a lower prices. Third one, that is useful in facing the future changes and uncertainty. With planning, we know that we are planning for the future and we know the future is always uncertain. Manager always try to make an attempt to have a proper and accurate estimate of your production and even the cost for your next month. All estimate will go wrong if your unexpected occurrence like fire, strikes, accidents will happen. So planning is important, or it is essential to cope up with such contingency event. It makes us provision for the future changes in circumstances, so it will not adversely affect your actual result. Planning क्यों जरूरत होते हैं कि फ्यूचर की चेंजेस और अनसर्टेनिटी को हम इजीली हम मैट कर सकते हैं, इजीली हम डील कर सकते हैं, इसलिए प्लानिंग जो होता है वो जरूरी होता है. तो प्लानिंग के कारण यू विल एबल टू फेस योर future changes and uncertainty and it will not affect your actual result. Next one is focus attention on objective of the unit. There is always an attempt to be made through planning to that कि बेसिक ऑब्जेक्टिव आपके डिफाइनिंग टाइम पीरियड में आपका अचीव होता है. हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं ना, वो अपने टारगेट जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं. अभी
आपका यहाँ पे प्लानिंग नहीं होगा तो हर एक डिपार्टमेंट हेड को विल कीप ओनली अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ हिज डिपार्टमेंट और लॉन्ग टर्म गोल को वो निग्लेक्ट करेंगे। तो फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग के थ्रू ओनली वी विल फोकस ऑन अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट। बिकॉज आप देखोगे हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है ना वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जस्ट आपका प्लानिंग के एब्सेंस के कारण। पर प्लानिंग होगा तो हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे फोकस करेंगे। तो प्लानिंग मेक ऑल द मैनेजर्स का तो कैन कीप ऑल द मैनेजर्स टूवर्ड्स टारगेटिंग द बेसिक गोल ऑफ द बिजनेस। Planning imparts accuracy. We know that planning is based on defined calculation of the cost and benefit. There is no room for the guesswork in planning. ठीक है, प्लानिंग में आप guesswork नहीं कर सकते हो, प्लानिंग में आप डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, प्लानिंग में आप unnecessary activity नहीं करते हो। Under your planning, all the relevant facts are being accumulated. ठीक है, they are systematically classified and decisions are made after analyzing those डेटास एंड द फैक्ट्स। ठीक है, प्लानिंग में हर एक डेटा जो आप कलेक्ट करते हो वो आप क्लासिफाइड करते हो और डिसीजन उसी फैक्ट के हिसाब से आप एनालाइज करके आप अपने डिसीजन लेते हो। तो प्लानिंग के थ्रू आपका डिसीजन जो होगा वो मोर साइंटिफिकली होगा एंड मोर रैशनल होगा। Next one, planning help other function of manager. We know that for an efficient organization which can be evolved through your planning only if your policy and program are clearly laid down. It can be easily decided how many employees are to be engaged, what sort of training is being required, and what is budgeting being required for your मैनेजिंग द एक्टिविटी। तो प्लानिंग के कारण आपके दूसरे फंक्शंस जो होते हैं वो भी अच्छे से मैनेज हो सकता है। नेक्स्ट वन, प्लानिंग फैसिलिटी कंट्रोल। आप प्लान करोगे तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, और यहाँ पे आप क्लियरली डिफाइन करोगे आपके स्टैंडर्ड्स, आपको क्या एक्चुअल वे में आपकी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, आप अपना स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे और उसी स्टैंडर्ड के थ्रू आप अपना एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करोगे। और जहाँ पे आपका डेविएशन दिख रहा है बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट और स्टैंडर्ड, तो उसके लिए आप करेक्टिव स्टेप्स लोगे, आप मेजर्स लोगे, करेक्टिव मेजर लोगे जिससे वो डेविएशन को रिमूव करने की कोशिश करोगे। तो प्लानिंग के थ्रू हम कंट्रोल भी कर रहे हैं हमारी एक्टिविटीज को, प्रॉपर तरीके से हम देख रहे हैं हर एक एक्टिविटीज। तो प्लानिंग इज फैसिलिटेटिंग द कंट्रोल। नेक्स्ट वन, प्लानिंग हेल्प विजुअलाइज अ क्लियर एंड कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ द बिजनेस। We know that with the help of planning, we can have a clear and a complete pictures of entire business unit, which is going to image before the management as a result of planning. आप प्लान करोगे तो आपको पता है कि मेरे को यहाँ पे क्लियर आप विजुलाइज कर सकते हो और कंप्लीट एंटायर बिजनेस कैसा होगा फ्यूचर में उसको भी आप विजुलाइज कर सकते हो। द मैनेजमेंट विल हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ अ रिलेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी ऑफ business with the help of planning. They will understand each and every activity very clear way. So इसके कारण आपका कोऑर्डिनेशन जो होगा हर एक एक्टिविटी में वो इजियर हो जाएगा। तो प्लानिंग के थ्रू आप अपना एंटायर बिजनेस को विजुलाइज करते हो, पर प्लानिंग के थ्रू हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करोगे बिकॉज हर एक एक्टिविटी को पहले से आप देख सकते हो, पहले से आप हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हो जिससे आपका इजियर होगा। Secure cooperation from an employee. Under planning, every employee know that what he has to do, how he has to do. So there is no ignorance, there is no misunderstanding about his activity on the part of any of the employee. Management select employment on scientific basis. Job are going to be assigned very carefully according to ability and aptitude of your employee. Wages are going to be given in equal pay. Wages are going to be fixed by an agreement. तो ये सारी result किस में हो रहा है कि we can have a atmosphere of the cooperation between labor and management which can increase the output and which can reduce the cost.
And last one, that is maintaining a balance between various activity. True planning will able to maintain a balance between other activity with your sales activity, because आप एक दूसरे के आपके प्लान आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्म करोगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल कोऑपरेट विद यू, तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी can be coordinated easily and can be have a balance between each and activity through planning only. That is the importance of planning. Next one is limitation of planning. अनसर्टेनिटी द बेस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग जो होता है वो कंसर्न किससे होता है? फ्यूचर. एंड हम प्लानिंग किसके लिए बना रहे हैं? हम फ्यूचर इवेंट के लिए बना रहे हैं. और प्लानिंग जो हम बना रहे हैं वो एक हाइपोथेसिस होता है, एक अजम्पशन होता है. तो हाइपोथेसिस हर बार सही होगा वो आप जरूरी नहीं बोल सकते हो कि हर बार हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सही होगा. इट मे टर्न आउट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से. ठीक है, तो जब भी आप प्लानिंग करोगे वो कभी कभी अनसाउंड बेस भी हो सकता है. ठीक है, हर एक बार आपका आर्गुमेंट सही होगा वो जरूरी नहीं होता. दैट इज योर बिगेस्ट लिमिटेशन कि विदाउट प्लानिंग इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू फेस द फ्यूचर अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस. बट वो प्लानिंग के कारण आपका जरूरी आपका अजम्पशन फ्यूचर के लिए सही रहेगा. ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते जैसे कि बीच में कोविड-19 के केसेस कम हो रहे थे, हम नहीं बोल सकते कि केसेस कम होने वाले. आप देख सकते हो उसके बाद दिवाली के बाद आपका केसेस बढ़ गए, तो ये अजम्पशन हर बार सही नहीं हो सकता है, गलत भी हो सकता है. लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है. मेन लिमिटेशन ये है, प्लानिंग इज लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज एक्सपर्ट्स आर नीड टू बी टेकन फॉर हैविंग अ प्लानिंग. हमें डेटा कलेक्ट करनी होती है, हमें क्लासीफाई करनी होती है, हमें एनालाइज करना होता है और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं. ठीक है, और इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर एन ऑल्टरनेटिव प्लान्स आल्सो टू इंटीग्रेट द मेन प्लान विद योर सब्सिडियरी प्लान. ये बोलने के लिए इजी होगा बट आप जब रियल वे में करोगे तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑल्सो. तो प्लानिंग शुड बी अंडरटेकन इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर जहाँ पे हम कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करें और बेनिफिट ज्यादा हो. थर्ड वन आप देख सकते हो, प्लानिंग मेक अ मैनेजमेंट अ रिजिड. प्लानिंग आप करोगे तो आप प्लान करोगे तो उसी हिसाब से काम करना होगा. आपकी एक्टिविटी जो होगी वो रिजिड होगी. जो एक्टिविटी आपने फिक्स की होगी उसी हिसाब से आपको एक्टिविटी को मैनेज करना होगा. तो प्लानिंग के कारण आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते अपनी एक्टिविटी. तो प्लानिंग मेक मैनेजमेंट रिजिड बिकॉज जो एम्प्लॉय का इनिशिएटिव होता है अंदर योर प्लानिंग, ऑल एक्टिविटी आर रिजिड होती है. ठीक है, हर एक एक्टिविटी प्लानिंग के कारण आपकी रिजिड हो सकती है बिकॉज एडवांस में आप प्लान करते हो. तो इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज आर बीइंग निग्लेक्टेड. ठीक है, प्रोसीजर इतना टाइट होता है, ठीक है, फिक्स होता है, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. तो ये आपका लिमिटेशन हुआ इन योर प्लानिंग. प्लानिंग इज अननेसेसरी. जब प्लान को चेंज ही करना है तो प्लानिंग क्यों करने की जरूरत है, ऐसा बोला जाता है ना. तो सम पीपल आर इन द ओपिनियन दैट प्लानिंग इज अननेसेसरी बिकॉज plans are always going to be changed according to change in the situation. It means plans remain on paper only. Then what is the use of planning if in reality things does not happen as we are planned? ऐसा आपको पता होगा कि रियल वर्ल्ड में जैसे हम प्लान करते वैसा नहीं होने वाला है, तो प्लानिंग करने की जरूरत क्यों है? इट इज Instead, you can have a best course to take a full advantage of the situation जब भी वो arise होता है. तो and even in the field of business, planning is not possible at all. ठीक है, because new business unit होगी जहाँ पे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को गाइड नहीं कर सकते हो. तो प्लानिंग इज अननेसेसरी फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू वेयर वी कैन से कि हर बार प्लान चेंज ही करना है, प्लानिंग करने की जरूरत क्यों है. तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस. इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, जब भी आपके एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल इनफ नहीं होते इन टर्म्स ऑफ योर पॉलिटिकल सिचुएशन, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ योर मैनेजमेंट कंट्रोल. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ योर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो उसके कारण आपका प्लानिंग जो होगा वो इफेक्टिव नहीं हो सकता है. मैनेजमेंट एक्सटर्नल फोर्स को फ्लेक्सिबल नहीं कर सकती इफ दे आर इनफ्लेक्सिबल. तो उसके कारण भी आपका प्लानिंग जो है वो वेस्ट हो सकता है. इनएक्यूरेट एंड इनएडिक्वेट डेटा. जब आपने डेटा जो कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट नहीं है, जब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो इनएक्यूरेट होगा तो आपका प्लानिंग जो आपने किया होगा वो भी फेल होगा. ठीक है, बिकॉज इट मे स्टेटेड इन आंसर दैट टू द क्रिटिसिज्म दैट fault lie with the planners also,
नॉट विद द प्लानिंग इटसेल्फ। तो प्लानिंग कब सक्सेसफुल होगा? जब अपने एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया होगा, एडुकेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा, बिकॉज क्वालिटी ऑफ प्लानिंग टोटली डिपेंड किस में होगा? क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा बीइंग कलेक्टेड। आपके डेटा ही गलत होगे तो प्लानिंग भी गलत ही होगा। प्लानिंग कल्टिवेट द फ्रीडम ऑफ एन एम्प्लॉयज। हमें पता है कि प्लानिंग में हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, एम्प्लॉयज को कुछ भी फ्रीडम नहीं होता है टू टेक एन एक्शन और टू टेक एन इनिशिएटिव। हम यहाँ पे उस वी आर एक्सप्लोरिंग देयर अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर, वी आर डूइंग एज पर द प्लान ओनली। तो एम्प्लॉय का फ्रीडम यहाँ पे कल्टिवेट हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है। नेक्स्ट वन, लास्ट, दैट इज यूज ऑफ डिफेक्टिव मेथड। मैथमेटिकल मेथड हम यूज करते हैं प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। इवन कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस इन अ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट। और बिजनेस सिचुएशन शुड बी टेकन कंसिडर कि आप कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हो। आपकी मेथड जो अप्लाई कर रहे हो फॉर योर प्लानिंग शुड बी वायबल एंड विल बी सुटेबल एंड इट शुड बी मेजर ऑन द डिग्री ऑफ द मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय। तो प्लानिंग के मेथड्स एक्यूरेट होने चाहिए, जिससे हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग आपका इफेक्टिव हो। तो प्लानिंग के मेथड भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। वी कैन सी इन कंक्लूजन दैट बोथ साइड्स आर कंसिडर ऑब्जेक्टिवली। वी फील दैट केस ऑफ प्लानिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द केस अगेंस्ट इट। आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि प्लानिंग आर नॉट अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्लानिंग are not against planning as such but against your defective utilization of planning. Planning करना गलत नहीं होगा, but after your proper utilization of your after your proper utilization of an forecasting or utilization of resource, planning can be effective also. ठीक है, so this was your limitation and importance. Let's go through the video.